My people of Tripura, Amar Priya Tripura Basi, all my children, grandchildren, and the children who are yet to be born, I may not be here then to see them, but definitely I hope the young ladies today who are sitting here will remember me and tell my stories to them. I thought I would write a speech. I'm not in the habit of speaking now. So, first of all, let me announce. I do it in Bengali, Hindi, English, all these, whatever comes to my mind. I would like to announce, आज हम डिक्लेयर करना चाहते हैं महाराजा वीर विक्रम के जन्मदिन में फाउंडेशन जो सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी महिलाओं को देगा और सीनियर सिटीजन्स को, क्योंकि जो सामाजिक बहुत से हमारे गरीब ऐसे होते हैं इनके पास काम करने की क्षमता नहीं रहती और महिलाएं होती हैं, कभी कोई विधवा हो गई, कोई बीमार हो गई तो सामाजिक और आर्थिक ढंग से कमजोर पड़ जाती है। तो वीर विक्रम के जन्म के अवसर में सबसे बड़ा हमारा जो मैं जो समझती हूँ, पैलेस का बहुत कुछ कल्चर है जो हम लोग बाहर नहीं दे सकते हैं। अब उसको एक फाउंडेशन बना के हम लोग ये कोशिश करेंगे इस फाउंडेशन का। आज मेरा आवाज अनिमेष से ज्यादा तेज है। हम नहीं रोने वाले हैं, हमारी आवाज नहीं आ रही। मीडिया तो सुन ही सकता है। मीडिया को ये कहना चाह रही हूँ, one media friend, he asked me, আজকে 3 বছর ধরে কেন বীর বিক্রমের মহারাজের জন্ম হচ্ছে? I said in Hindi, देर से आए दुरुस्त आए, देर से आए दुरुस्त आए, meaning that there are good people like you all have, and if they are recognized rather late then never, it is a good thing. And then I said I am not in any political party, and they wanted to know why this was done. So I am saying 1941-42 Maharaja Veer Vikram went to America. He was the guest of President Roosevelt. Roosevelter সময়ে ওনারা উনি দেখলেন কি মহারাজের দেখলেন যে আমরা রিজার্ভ যারা ছিল আপনারা আমি শুনেছি ইন্ডিজিনাস বলতে পছন্দ করেন, তবে 1982-তে মহারাজা কিরিট বিক্রম সঙ্গে আমি গেলাম, ওখানে ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্ট ফর ট্রাইবাল রাইটস আছে আমেরিকাতে, একটা ডিপার্টমেন্টই আছে যেখানে যেখানে আপনার ইন্ডিজিনাস পিপল আছে। ওই সময় ইউনাইটেড নেশনস এর মধ্যে যেটা বুবাগরা জানে না ওনার জন্ম হয়। তো 130 মাইনরিটিস অল্প সংখ্যক ইউনাইটেড নেশনস এর একটা ডিমান্ড ছিল কি আমরাকে রেকগনাইজ করা হোক। এখন পর্যন্ত এটাই চলছে, জেনিভাতে আছে, ইউনাইটেড নেশনস এ আছে। তো এটা আমার মনে হয় that আমরা people we should not get stuck, though Maharaja is saying indigenous people will remain indigenous. The meaning of indigenous means the first, the primary, the first to be in the earth.
Education must teach us to recognize the truth and the honest truth. আমরা এখন এডুকেশনের মধ্যে আমি দেখেছি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন ত্রিপুরা, অনেক ভারতের অন্য জায়গাতেও আছে। বিশেষ করে আমরা আদিবাসী বেল্টের বলো কি মধ্যপ্রদেশের এই সব জায়গাতে এডুকেশন খুবই উইক আছে, খুব কমজোর আছে, ইজ ভেরি উইক। And unfortunately, in Tripura also, the teachers have to be better. They must learn to be more open. And in 1901, Maharaja Veer Bikram's আপনার মানিক্য ডাইনেস্টি, যেখানে ছোট রাজ্যের মধ্যে আমরা এত বেশি স্কুল ছিল, আমেরিকাতে ছিল না। এটা বড় কুমারী প্রজ্ঞা এখানে নাই, উনার কাছে সে তথ্য আছে। 1905 যারা বলে রাজারা শিক্ষা দিল না, এটা মিথ্যা, it is a lie. There are records to prove that. The history of Tripura is very rich. The people of Tripura are very intelligent. They have arts and crafts. We have a culture of politeness. Amrar culture er moddhe সভ্যতা আছে, we are very polite. আমরা একদম violent, আমরা এই রকমের bad mannered নয়। এবং এই আমরা প্রচার করি না, আমরা কি করেছি এই পরিবারের, এটা একটা মুখ্য কারণ কি আমি এটা করছি, আমি ও রাস্তা দিয়েছি, আমরা এটা জিতলাম। নো, that is not Tripura's culture. The Tripura people were not like that. The Bhumagras were not like that. I will show you just now a letter written by Mahatma Gandhi to Maharaja Veer Bikram. In 1946, we have been great contributors to India's people also. So let us remember that as well. ত্রিপুরা রাজারা ভারতবর্ষের অনেক কিছু উনি দিয়েছেন। 1946-এ 1942-এ বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার সময় অনেকটা নন ট্রাইব বেঙ্গলের মধ্যে মানুষরা মরছিল। এই ত্রিপুরা রাজ্যের থেকে, রাইমা ভ্যালি থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টন এই মহারাজা বীর বিক্রম রাইসকে, ধান ওখানে দান করেছেন, মানুষকে খাওয়িয়েছেন। তো এইসব প্রচার আমরা করিনি। 1946-এ মহারাজকে মহাত্মা গান্ধী একটা চিঠি দেন, আমার বই এখানে আছে, ওটা 1969 প্রচার করা একটা বই আছে, যেখানে we said please মহারাজা open the borders. তো আমরা এটাও করেছি, এটা বললাম না আমি মানুষকে খাওয়াইছি, এরা গরিবরা মরতে আসছিল, তারা জায়গা দিছে, এটা বলা হয়নি। কেন মানবতাও একটা ধর্ম আছে, মানবতার ধর্মের অর্থের এটা মাত্র হয় না, কি দুই দিকে থেকে প্রেম করা উচিত। যারা মানবতার ধর্মকে মানেন, হিউম্যান, anybody who is suffering, we should also help them. আমার বই আছে এখানে। No, 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 no. No, কোনা নেই है. So I will go on to another point. So we have a custom, ত্রিপুরারে আমরা মানুষের, আমরা পাহাড়ের এবং গরিব হইলে জয়ী হোক, এরা খুব পোলাইট, খুব বাংলাতে क्या बोलेगा, बहुत आदर सत्कार, अपना तारीफ नहीं करता है। हम ये है, हम वो है, ये हमारा कल्चर में नहीं है। हम लोग जो भी करते हैं चुपचाप से भी करते हैं, हमारा प्रचार करने की आदत नहीं है। क्या हमने देश में दिया और विदेश में भी, इंग्लैंड में महाराजा वीर विक्रम ने, ऑस्ट्रिया में, सभी जगह कुछ ना कुछ दान दिया है। ये भी आप लोगों को हम निकाल के दे देंगे इतिहास का। अब मेरा ये कहना है कि 2007 में
हमने कांग्रेस को पॉलिटिक्स नहीं करते मगर इसलिए छोड़ा, हमने सोनिया जी को बोला प्लीज महाराजा वीर विक्रम के नाम से आप एक वो बनाइए एयरपोर्ट, क्योंकि वीर विक्रम ने कहा था एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोगों को नमक वो भी हम लोगों को बाहर से लाना पड़ेगा। वो इतना दूर का सुनता था, सोचते थे कि वो सोचता थे 10-20 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा, हमारे लोग क्या करेंगे। इसलिए जब वो वहां से अमेरिका से आए, उन्होंने ट्राइबल रिजर्व बनाया 2000 वर्ग माइल का, कहा जितना हमारा पहाड़ का जाति है, ये लोग में बहुत गरीबी है, इनके उन्नति के लिए ये जगह रहना चाहिए। त्रिपुरा में और पूरा उत्तर पूर्वांचल में इनर लाइन परमिट था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट था, त्रिपुरा में रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट था, और वो भी आज देख रहे हैं उसका कोई वो सम्मान नहीं है और ना रहा। 1959 में जब भारत से मर्ज हुआ त्रिपुरा, तो 1959 में हमारे लेट महाराजा, हमारे महाराजा वीर विक्रम के जो बेटे हमारे थे वो एमपी भी थे, मगर गोविंद बल्लभ पंत होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आए और उनके नाम में गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल बनाया गया। 20 एकड़ जमीन दी गई। जब हम रेवेन्यू मिनिस्टर थे तब पता चला बहुत सा जमीन इधर उधर हो कर दिया लोगों ने। फिर 30 एकड़ और था, तो राजा का जमीन लेकर 50 एकड़ आज हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है त्रिपुरा में कहीं ज्यादा होना अच्छा चाहिए था। और वो जब राजा ने गोविंद बल्लभ पंत जो कि उत्तराखंड से थे, जो कि होम मिनिस्टर, पहला होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थे, उसके बाद सरदार पटेल के बाद उनके नाम में, अपना नाम में नहीं किया, अपना नाम में नहीं करा, अपना बाबा के नाम में नहीं किया, मगर त्रिपुरा के आदमी के सेवा के लिए। इसीलिए हमने कहा हम लोग प्रचार नहीं करते। TTADC कैसे बना, क्यों बना, किस कारण बना? ये बना क्योंकि जब 1980 का राइट हो गया, उससे पहले लोग आने लगे हम लोगों के रिजर्व एरिया में। तब इंदिरा जी ने देखा 80 के दंगे के बाद कि बहुत अशांति है और ये डिमांड देना चाहिए। ये भी आप लोगों को समझना चाहिए कि आजकल के जमाने में जब देर हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन में, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं ऐसी हैं, हमारे लोग जानते नहीं हैं, तो वहां पर करप्शन आ जाता है। तो करप्शन के विरुद्ध महाराज भी, हम भी अपने समय में जितना कर सकते थे, ये आपके ही महाराजा वीर विक्रम का हम डॉटर इन लॉ है, बहू है, इसका भी हमने कोशिश किया। मगर अपनी तारीफ आपको नहीं बता रहे हैं, अपने बारे नहीं बताना चाह रहे हैं, मगर आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमने कोशिश किया। अभी भी छोटी छोटी कहीं कहीं जगह दंगा कराने की कोशिश करते हैं बहुत से लोग जो राजनीति करते हैं, इसके हम विरोध करते हैं। हमारा राज्य छोटा था मगर सम्मान में बहुत बड़ा। इसका इतिहास ऐसा है कि छोटे होते हुए भी दिल बहुत बड़ा, सबको मदद करने के लिए और मानव जाति की सेवा कर सके, यही हम लोगों का उद्देश्य था। हम लोग बर्मा तक पूरा मिजोरम, त्रिपुरा महाराजा का था। ईस्टर्न बाउंड्री डिस्प्यूट, पूर्व बाउंड्री डिस्प्यूट 1877 से 1874 से शुरू हुआ। वीर विक्रम महाराजा ने केस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर और 1945 तक हम लोग ने केस किया, उसकी लड़ाई चली। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि आज अगर कोई भी आप लोगों को छोटा दिखाए, छोटा बनाए,
मैंने नागालैंड में भी यही बात कहा। आप लोग बोलता है ओ वी आर सॉरी फॉर द पीपल ऑफ त्रिपुरा। आपने क्या किया? लिप सर्विस, मुख से बोला। हमको बुलाते हैं, हम नागा वीक में गए। 1993 में हमने डिमांड किया था, ये आप लोगों को जानना चाहिए कि एक भी त्रिपुरा में, एक भी शहर में, एक भी टाउन में त्रिपुरा के लोगों के लिए, हमारे जो इंडिजिनस जो आप लोग सुनना चाहते हैं, इसी वर्ड से ही कहेंगे, एक भी सीट रिजर्व नहीं है। जब विजय रांखल जी ने टीएनवी का हुआ तो हम लोगों का 17 सीट से 19 करा, 19 से टीएनवी प्रॉब्लम हुआ, रंजीत ये लोग सभी जानते हैं। फिर एक सीट बढ़ाया और कह दिया हमने 20 सीट दे दिया। नहीं, गलत। हमको मालूम है क्योंकि हम इस चीज को जानते हैं। हमने तब पार्लियामेंट में कहा मिस्टर एसबी चौहान को, मिस्टर एसबी चौहान प्लीज गिव अस कृष्णनगर सीट इन अगरतला एज अ रिजर्व सीट। हम लोगों को सभी को जंगल ही जाओ, गांव में जाओ, कोई सीट नहीं मिलता है, शहर में एक भी नहीं है। और कृष्णनगर सीट क्यों हमने मांगा, अगरतला सीट क्यों मांगा? क्योंकि अगरतला सीट जो है ये हमारा त्रिपुरा राजा का कैपिटल था और कैपिटल स्टेट के मुताबिक हम लोगों का, हमारा जो डिमांड पार्लियामेंट में आज भी पड़ा है वो डिमांड था। ये भी आपको हम बताना चाहते हैं क्योंकि हमने आज तक ये सब बातें कभी कही नहीं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप लोग सब अगर महाराजा वीर विक्रम को याद करना चाहते हैं, आपको ये याद करना चाहिए कि हमारे जितने भी त्रिपुरा है यहाँ पर, लोकल ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स, दूसरे कास्ट के और रिलीजन के जो भी हैं, हमारे मुस्लिम बॉडीगार्ड्स थे महाराजा के, हम लोगों के, हमारा महाराज के थे। ये आप लोगों को नहीं मालूम, हमारा फौज में सब लोग आते थे। तो इसीलिए एकता करना जरूरी है और आज के सेलिब्रेशन में ये चीज याद रखना चाहिए, बिकॉज इट इज इन फिटनेस ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ दिस डे वी हैव टू बी विजिलेंट। हम लोगों को विजिलेंट होना चाहिए। हमारे बच्चों को अपना समाज का अगर अच्छा करना है, ड्रग्स और जितना गलत गलत आदतें हैं इसको छोड़ना चाहिए। ये समाज का धर्म है, बड़ों का धर्म है। अगर बच्चे बीमार हुए और बेकार के हुए तो त्रिपुरा का कोई उन्नति नहीं होगा। समाज में हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी चाहिए, दिमाग से भी शरीर से भी। ये हमको सबसे ज्यादा दुख लगता है जब हम ये सुनते हैं। एक और लास्ट में बोलना चाहूंगी, कहने को बहुत है कि महाराजा वीर विक्रम वॉज अ विजनरी। जो आदमी विजनरी होता है, आज उनके जन्मदिन के दिन 1908, ये किसी से नहीं डरते हैं। ये अपने विजन को एंडोर्स करते हैं। एंडोर्स का मतलब हुआ दे see to it that the people learn to accept the truth and the justice. And जब उनका कमिटमेंट होता है अपने ड्रीम के लिए, सेंस ऑफ जस्टिस के लिए, तो उसके फुलफिलमेंट के लिए और जितने ह्यूमैनिटेरियन काम होते हैं उसके लिए वो काम करते हैं। आज हर पार्टी कहता है और हर पार्टी में और हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट भी है और कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स भी है। दे हैव अ कंफ्यूजिंग, conflicting reports. So we have leaders who too have become indecisive. They can't make up their mind. Indecisive. उनका जो इतना जो confusion है उनके अंदर, unfortunately, तो मगर इसको कहते हैं democracy है. This is called democracy. It's called democratic. But I do not think that
personal ambition, personal desires can override public interest. पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी नेता का पर्सनल एम्बिशन और कोई भी आदमी हो उसके ऊपर त्रिपुरा का जो हमारे त्रिपुरा के जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट पहले होना चाहिए। हमारा खाली नाचना गाना कपड़ा पहनना ये सब एक जगह है, मगर आपके सेंस के अंदर ये होना चाहिए कि हम लोग इतने ऑनेस्ट हैं, हम लोग कितने करप्शन फ्री है, हम देश का कितना भला कर सकते हैं, ये हमारे अंदर इसका प्राइड होना चाहिए। और ये होगा असली महाराजा वीर विक्रम को हम लोग श्रद्धांजलि देना। सो फ्रेंड्स, because I'm making this foundation for the people, for the elderly, for the citizens, I will expect all of you to join as a social cause for the welfare of our Tiprasa. Jai Hind. Thank you.